Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope all of you are fine. Today I am going to teach you chapter number 5 of your English book, class 6th, that is the Kashmiri shawl. तो इसका रिमेनिंग पोर्शन जो है वो रह गया था हमें कल, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको. सो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, टर्न पेज नंबर 55. यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं. आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द second para of this page number 55 of your English book class 6th. यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ. लेट अस स्टार्ट. यहाँ से मैं रीडिंग करूँगी. तो रीडिंग से मैं स्टार्ट करूँगी इस पैरा को. आफ्टर रीडिंग हम इसको जो है वर्ड टू वर्ड जो है ट्रांसलेशन करेंगे और आप नोट डाउन करेंगे. डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप अंडरलाइन करेंगे पेंसिल से, और फिर डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग जो है उसको आप अपनी रफ कॉपी पे उतारेंगे या आप इसी तरह से अपने माइंड में सेव करेंगे. सो आई स्टार्ट रीडिंग. The price of pashmina shawl varies from thousands of rupees to lakhs of rupees depending on the craftsmanship and the time taken in its making. The credit for starting the shawl industry goes to Sultan Zain al Abidin, popularly known as Badshah. According to Karl von Hugel, who visited Kashmir in 1836, the Sultan summoned in the 15th century a highly skilled weaver, Nagsbek from Turkestan, to build a loom for weaving shawls. The Mughals reorganized the industry. Akbar and his successors wore shawls of Kashmir. After Napoleon presented a rare shawl to Empress Josephine, shawls became a craze in France. The British were the first to develop an interest in Kashmiri woven goods. Both Britain and France sought to manufacture and copy Kashmiri shawls, but they followed a technique more in keeping with turn page number 56 with the European tradition. The European shawls were trimmed, which weakened the shawl, and thus the beauty was marred. European women preferred Kashmiri shawls whose warp and weft were interwoven into an interlocker, making their decorated section is much stronger. Also, the European shawls were woven in several pieces which had then to be sewn together, a technique that was quite different from the one followed in Kashmir. It was only during the 19th century the European learned to make a single piece of shawl. Kashmiri shawls are used as wedding gifts and form an important item in the bride's trousseau. They are worn by men of elite class over the shoulders. Kashmiri shawl industry feeds a lot of people, men and women, especially in village. In Kashmir, even young girls and boys help their parents in embroidery work. Although people have to sit a long time to weave, they do it to earn their livelihood. Here I completed the reading of this paragraph. So now I start translating these liners. तो वर्ड बाय वर्ड मैं आपको ट्रांसलेशन बताऊंगी. आप नोट डाउन कीजिए जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है और आप अच्छे से प्लीज़ इसको सुनिए. The price of pashmina shawl varies from thousands of rupees to lakhs of rupees. कहते हैं जो पश्मीना शॉल है, जैसे आपने पढ़ा लास्ट पैराग्राफ में, कल आपने पढ़ा कि शॉल जो है खासकर टू काइंड्स के शॉल्स होते. पश्मीना शॉल जो है देवर ऑफ टू काइंड्स, दैट इज़ एक होता था लूम शॉल, दूसरा होता था तोशा का. जो तोशा है या शाहतोश जिसको हम बोलते हैं वो बहुत महंगे किस्म का, जिसकी जो प्राइस है वो लैक्स में चली जाती है, और जो लूम शॉल है उसकी प्राइस जो है वो थाउजेंड्स में होती है. तो कहते हैं ये डिपेंड करता है क्राफ्ट्समैनशिप पे कि क्राफ्ट्समैन ने इस पर कितना टाइम दिया है, कैसे बनाया है, कैसी एम्ब्रॉयडरी है, कौन सा जो वूल है वो यूज़ किया है. शाहतोश का वूल दैट मीन्स तिब्बतियन एंटीपोल का यूज़ ये किया है, या बाकी जो वाइल्ड गोट्स हैं उनका यूज़ किया है वूल. तो इस तरह से इसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है. The price of pashmina shawl varies from thousands of rupees to lakhs of rupees. कहते हैं ये प्राइस जो है वेरी करती है, डिफ़र करती है. 1000 रुपीज़ से लेकर इसकी प्राइस जो है लाखों में चली जाती है. किसकी? पश्मीना शाल की.
डिपेंडिंग ऑन द क्राफ्ट्समैनशिप एंड द टाइम टेकन इन द इट्स मेकिंग। ये क्राफ्ट्समैन ने किस तरह से इसको बनाया है, उसने कितना टाइम इसको बनाने में लगा है, कैसा बनाया है, कौन सा वूल इस्तेमाल किया है, ये डिपेंड करता है उस पर। अगर ज़्यादा कीमती वूल इस्तेमाल किया है तो ज़्यादा प्राइस लाखों में चली जाएगी। तो अगर सिंपल जो है वो लूम शॉल है तो थाउजेंड्स में चली जाएगी। द क्रेडिट फॉर स्टार्टिंग द शॉल इंडस्ट्री गो टू सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन पॉपुलरली नोन एज बादशाह। इसका क्रेडिट सारा जो जाता है इसको, इस पे मेहनत इस शॉल इंडस्ट्री को जो की है यहाँ पे लाने की, वो की उसका क्रेडिट सारा जाता है बादशाह को, जिसको ज़ैनुल आबिदीन, जो सुल्तान कश्मीर के मशहूर सुल्तान थे ज़ैनुल आबिदीन, जिसको बादशाह कहते हैं, मशहूर है इस नाम से यहाँ पे कश्मीर में बादशाह। तो उसी ने इस शॉल इंडस्ट्री को यहाँ पे जो है वो इस्टेब्लिश किया है, यहाँ पे जो है वो बनाया है। ओके जी। अकॉर्डिंग टू कार्ल वॉन ह्यूगेल, कॉर्नवॉल हेगन जो है एक विजिटर था, ये एक ब्रिटिश का विजिटर था, हु विजिटेड कश्मीर इन 1836। ये कश्मीर में आया 1836 में। द सुल्तान समन्ड इन द 15th century हाईली स्किल्ड वीवर नागस बेग फ्रॉम तुर्किस्तान टू बिल्ड ए लूम फॉर वीविंग द शॉल्स। ये जो कार्ल वोन जो यहाँ पे आया, उसने अपनी बुक्स में लिखा है कि जो सुल्तान थे ज़ैनुल आबिदीन थे, ही समन्ड इन द 15th century हाईली स्किल्ड वीवर। समन्ड मीन्स बुलाना, अपनी अदालत, अपने इस जो है अपनी स्टेट में बुलाया उसने, कश्मीर में बुलाया उसको। कहाँ से, कहाँ का था? एक हाईली स्किल्ड वीवर, हाईली बहुत मशहूर था, ये बहुत जानने वाला था, हुनरमंद था। सिकल मीन्स हुनर, इसको बहुत हुनर था शाल बनाने का। वीवर मीन्स जो शाल बनाते हैं। नाम था उसका नागस बेग। नागस बेग जो था ये तुर्किस्तान का एक शॉल बनाने वाला था, जो वहाँ पे बहुत मशहूर था। ज़ैनुल आबिदीन ने उसकी तारीफ़ सुनी थी, उसके बारे में सुना था कि ये बहुत अच्छी किस्म का शॉल, उम्दा किस्म के शॉल बनाता है। तो उसने इसको बुलाया, ही समन्ड हिम, उसने उसको वहाँ से यहाँ बुलाया, तुर्किस्तान से कहाँ पे बुलाया? कश्मीर बुलाया। क्यों? टू बिल्ड ए लूम फॉर वीविंग शॉल्स। यहाँ पे आप एक कारखाना, शॉल, लूम बनाओ। जो मैंने कल आपको फोटोग्राफ्स भी दिखाए लूम के, जिसपे हम, वो एक छोटी सी फैक्ट्री होती है जिसपे हम शॉल्स को बनाते हैं। तो कहा कि यहाँ पे हमें एक लूम बना के दो और यहाँ पे लोगों को सिखाओ कि किस तरह से जो है शॉल बनाए जाते हैं, फॉर वीविंग शॉल्स। तो शॉल्स को बनाने के लिए यहाँ पे हमें एक लूम बना के दो और मेरे लोगों को यहाँ पे सिखाओ कि किस तरह से शॉल बनाए जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो किंग्स आते हैं, मुगल सुल्तान के बाद मुगल्स आते हैं। द मुगल्स रीऑर्गेनाइज्ड द इंडस्ट्री। मुगल्स ने भी इस इंडस्ट्री को दोबारा बनाया, रीऑर्गेनाइज किया, बढ़ाया, डेवलपमेंट इसकी की। उन्होंने भी इसकी तरफ बहुत तवज्जो दी। अकबर एंड हिज सक्सेसर, ज़्यादातर जो अकबर यहाँ पे था और उसके बाद जो बादशाह आए, ये जो आए शाहजहां या बाकी बादशाह जो आए, तो वो जो थे वो सक्सेसर्स थे वो शॉल्स ऑफ कश्मीर। वो कश्मीर के शॉल्स जो है पहनना पसंद करते थे। वोर मीन्स पहनना, सक्सेसर्स हो गए जो इसके अकबर के बाद जो इसकी हुकूमत को आगे चलाने वाले बेटे आए या बादशाह आए, उनको सक्सेसर्स कहते हैं। तो कहते हैं वो शॉल पहनना बहुत पसंद करते थे। आफ्टर नेपोलियन, नेपोलियन कौन था? आपने पढ़ा होगा कहीं बुक्स में, नेपोलियन का नाम आता है, नेपोलियन बोनापार्ट। ये जो था फ्रेंच का एक आर्मी मैन था, आर्मी लीडर था, आर्मी मैन नहीं था, आर्मी लीडर था। इसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो है बहुत सारा अपना नाम कमाया, लड़ाई की, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लाने में मदद की। तो कहते हैं नेपोलियन जो है ही प्रेजेंटेड ए रेयर शॉल। उसने एक उम्दा किस्म का शॉल जो है प्रेजेंट किया, प्रेजेंट हो गया, दिया। किसको दिया? टू इम्प्रेस। इम्प्रेस मीन्स इम्प्रेस, टू इम्प्रेस जॉस्पिन। अब ये जॉस्पिन कौन थी? जॉस्पिन जो है, जॉस्पिन वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ दिस नेपोलियन। नेपोलियन की बीवी थी जॉस्पिन। उसको इम्प्रेस करने के लिए उसने इस जॉस्पिन को जो है एक उम्दा किस्म का शॉल जो है वो प्रेजेंट में दिया, तोहफे में दिया, और कहा कि ये इसकी वजह से मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाए और खुश हो जाए। शॉल्स बिकेम ए क्रेज इन फ्रांस। शॉल्स जो है ये फ्रांस में एक पागलपन का क्रेज़, असल में बोलते हैं पागलपन को, एक दीवानापन सा वहाँ के लोगों पे छाया था इन शॉल्स के लिए। सब लोग जो थे फ्रांस में शॉल्स के दीवाने हो गए थे।
और सब जो है इन शॉल्स को डिमांड करते थे। तो कहते हैं फ्रांस के लोग जो है इन शॉलों के दीवाने हो गए। द ब्रिटिश वर द फर्स्ट टू डेवलप एन इंटरेस्ट इन कश्मीरी वोवन गुड्स। ब्रिटिश जो है अंग्रेज़ लोग जो है वो यहाँ पे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में कारोबार कर, फ्रेंच आए, डच आए, बहुत सारे लोग आए, पुर्तगीज़ आए, लेकिन कहते हैं ब्रिटिशर्स जो है ये वो पहले लोग हैं जिनको कश्मीर के वोवन गुड्स, जो बनाए हुए हाथ से बनाई हुई चीज़ें जो है वो बहुत पसंद आई। बोथ ब्रिटेन एंड फ्रांस sought to manufacture the copy of कश्मीरी शॉल्स। अब ये अंग्रेज़ जो है इतने ये मुतासिर हो गए यहाँ के इन शालों से, तो फ्रांस के लोगों ने भी और ब्रिटेन के लोगों ने भी कॉपी करना, नकल करनी चाहिए, कॉपी करनी चाहिए कश्मीरी शॉल्स की। इन्होंने कहा हमारे पास इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, हमारे पास इतनी नई टेक्नोलॉजी है, तो हम ये शॉल्स जो है वहाँ पे ही खुद बनाएंगे अपने मुल्क में, हमें क्या ज़रूरत है यहाँ लेने की। तो क्या हुआ, बट दे फॉलोड ए टेक्निक मोर इन कीपिंग विथ, लेकिन उन्होंने वो टेक्निक अपनाई। दे फॉलोड ए टेक्निक, उन्होंने ऐसी एक टेक्निक अपनाई मोर इन कीपिंग विथ द यूरोपियन ट्रेडिशन। यहाँ पे आपने देखा कश्मीरी शॉल्स में जो है कश्मीर की टेक्निक्स, यहाँ के वीवर जो है उनको कश्मीर की टेक्निक्स थी, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर यूरोपियन ट्रेडिशन, वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वहाँ का जो वहाँ की जो चीज़ें हैं, वहाँ का अपना जो उनको वहाँ पे अपनी जो कारीगरी थी वो उसमें उन शॉल्स में जो है वो दिखाई। तो इस वजह से क्या हुआ, द यूरोपियन शॉल्स वर ट्रिम्ड विच weakened the shawl and thus the beauty was marred। कहते हैं द यूरोपियन शॉल्स आर ट्रिम्ड मीन्स काटना, छोटा करना। आप देख रहे हो, आप कहते हो ट्रिम करो बालों को, है ना, ट्रिम्ड मीन्स छोटा करना, काटना। तो इन्होंने इन शॉल्स को छोटा किया, विच वीकनेड, जिसकी वजह से ये शॉल जो है, वीक मीन्स जो होते हैं कमज़ोर, असल में यहाँ पे शॉल तो कमज़ोर नहीं होगा, वीकनेड इसका मतलब इसकी ब्यूटी जो है इसकी वजह से कम हो गई इन शॉल की। दस द ब्यूटी वाज मॉर्नड हो गई, कम होना, मॉर्नड मीन्स कम होना। तो इसकी वजह से इसकी ब्यूटी, जो शॉल्स मशहूर थे, शॉल्स की खूबसूरती जो थी, जो इन्होंने अपनी टेक्निक्स इसमें यूज़ की, उनकी वजह से जो इसकी ब्यूटी है वो ख़त्म ही हो गई, समझो बहुत कम हो गई। ये शॉल्स जो है कश्मीरी शॉल्स के बराबर नहीं बन पाए। यूरोपियन वुमेन प्रेफर्ड कश्मीरी शॉल्स हुज वेप एंड वेफ टू वायर इंटरवोवन एंड इंटरलॉकड। यूरोपियन वुमेन जो थी वो प्रेफर करती थी कि हमें कौन सा शॉल चाहिए, कश्मीरी शॉल पहनना पसंद करते थे। वो बहुत मुतासिर हुई, कल मैंने आपको बताया जो वेप एंड वेफ्ट, जो इंटरवूवन होता है, इंटरवूवन हो धागा एक दूसरे में से निकाल के धागे बनाना, जैसे इस किस्म का मैंने बताया था आपको, फिर ये धागा इसमें डाला जाता है इसमें, तो वो इस चीज़ या इंटरलॉक एक दूसरे में फंसे हुए होते थे ये धागे, उस चीज़ से वो बहुत मुतासिर और बहुत पसंद आई, क्योंकि ये हाथ से काम किया जाता था, बहुत मुश्किल काम होता था। मेकिंग दियर डेकोरेटिव सेक्शन एज मोर स्ट्रंग। आप देख रहे हो शॉल पे जो कारीगरी की होती है, बहुत मेहनत से इन शॉल्स पे काम किया जाता है। तो कहते हैं ये जो इन पे काम होता था, ये डेकोरेशन जो होती थी ये बहुत खूबसूरत होती थी इन शॉल्स की। तो इस तरह से ये शॉल, जैसे ये है, इस तरह से ये शॉल्स पे काम किया जाता है। तो इस तरह ये शालों का काम जो इंटरलॉकड होता था, एक दूसरे में धागे फंसे हुए होते हैं, ये जो है यूरोपियन औरतों को जी बहुत पसंद था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं वहाँ के जो शॉल्स उन्होंने बनाए ब्रिटेन ने, वो उन्होंने ज़्यादा पसंद नहीं किए, बल्कि वो इन चीज़ों से ज़्यादातर मुतासिर हुए जो यहाँ के शॉल्स थे। The European shawls were woven in several pieces which had then to be sewn together। कहते हैं यूरोपियन शॉल जो है इनको इन्होंने एक ही, यहाँ पे आपने देखा शॉल जो होता है लंबा सा कुछ मीटर्स का होता था, 2 पॉइंट कुछ मीटर्स, लेकिन इन्होंने जो यूरोपियन शॉल्स, यूरोप वालों ने जो शॉल्स बनाए, दे वूवन, उन्होंने वो कैसे बनाए, इन सिवरल पीसेस, कुछ इन्होंने इनके पार्ट्स किए, काटे, सिवरल पीसेस में इसको बनाया, विच हैड देन टू बी सिवन टुगेदर। सिवन मीनस फिर उसको सिलाई मशीन से जोड़ा जाता था, सिव किया जाता, स्टिच किया जाता था, तो इसको फिर जोड़ा जाता था। A technique that was quite different from one followed in कश्मीर। ये टेक्निक बहुत मुख्तलिफ थी, जैसा कि हमारे कश्मीर में जो वो एक ही पीस लॉन्ग शॉल, एक ही पीस होता था, इन्होंने जो शॉल्स बनाए डिफरेंट पीसेस के होते थे। तो इस तरह से इसकी खूबसूरती जो है, जो ब्रिटेन के शॉल्स थे वो बहुत कम थी।
It was only during the 19th century that European learned to make a single piece of shawl. 19th century में किसी तरह इन यूरोपियन वालों ने सीखा कि ये शॉल जो है ये एक ही पीस में बनाना चाहिए, इसके टुकड़े टुकड़े नहीं है। इनको पहले लगता था ये शायद टुकड़ों में बनाया जाता है, तो अब इन्होंने 19th सेंचुरी में सीखा कि शॉल जो है इसको सिंगल पीस में, एक ही पीस में जो है वो बनाना है। कश्मीरी शॉल्स आर यूज्ड एज वेडिंग गिफ्ट्स। कश्मीरी शॉल जो है इनको खासकर हम शादी के जो अवसर होते हैं, शादी के मुकाम होते हैं, उन पे हम लड़कियों को, हम ब्राइड्स को गिफ्ट देते हैं, फ्रेंड्स को गिफ्ट देते हैं इन शॉल्स को। ये एक बहुत अच्छा वेडिंग गिफ्ट है। वेडिंग हो गई शादी, शादी पे गिफ्ट देते हैं, तोहफा देते हैं इन शॉलों को। फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट आइटम इन द ब्राइड्स टर्स्यू, और ब्राइड की टर्स्यू जो होती है, टर्स्यू हो गया दुल्हन का जो सामान, दुल्हन के जो कपड़े होते थे उनमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये शॉल होती है। दुल्हन को शॉल के बगैर तो दुल्हन मानेगी नहीं ससुराल जाना, तो इसलिए शॉल जो है ये दुल्हन के सामानों में, दुल्हन के कपड़ों में से एक उम्दा कपड़ा माना जाता है। दे आर worn बाई मैन ऑफ elite क्लास ओवर द शोल्डर्स। जो elite क्लास के लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग, elite क्लास, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स होते हैं, elite क्लास बोलते हैं उन्हीं लोगों को जो बहुत बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, तो वो अब इन शॉल्स को यूज़ करते हैं अपने शोल्डर्स पे, अपनी शान समझते हैं अपने शोल्डर्स पे इन शॉलों को पहनना। कश्मीरी शॉल इंडस्ट्री फीड्स लॉट्स ऑफ पीपल। कश्मीरी शॉल इंडस्ट्री जो है फीड्स लॉट ऑफ पीपल, इसका मतलब क्या है? फीड मीन्स खाना, ये नहीं, इसका मतलब नहीं है खिलाता है, इसका मतलब है बहुत सारे लोगों को जो है, जब इंडस्ट्री बनी कश्मीर शॉल, बहुत सारे लोग जो बेरोज़गार थे वो जो है उनको रोज़गार मिला इन शॉल इंडस्ट्रीज़ में, वो काम करते हैं। मैन एंड वोमेन, औरतें भी और मर्द भी इन शॉल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनको पैसा मिलता है। स्पेशली इन विलेज इन कश्मीर, ज़्यादातर कश्मीर के गाँवों में ये जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ होती है, शॉल फैक्ट्रीज़, वो काम करते हैं, औरतें भी मर्द भी। एवरी यंग गर्ल एंड बॉय हेल्प देयर पेरेंट्स इन एम्ब्रॉयडरी वर्क। हर कोई बच्चा जो इन कारीगरों के बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप की, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अपने माँ बाप की हेल्प करते हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क में। जो ये इस पे नकाशगरी करते हैं उस एम्ब्रॉयडरी वर्क में उनकी हेल्प करते हैं। ऑल्दो पीपल हैव टू सिट अ लॉन्ग टाइम टू वीव। इसको बनाने में, इसको वीव करने में, इसको सिलने में, इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये लोग जो है फैमिली एक ही बैठती है इन शॉल्स पे काम करती है। दे डू इट टू अर्न देयर लाइवलीहुड। ये इन शॉल्स को क्यों बनाते हैं? ताकि दे अर्न देयर लाइवलीहुड, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी का गुजारा हासिल करने के लिए इन शॉल्स पे मेहनत करते हैं, फिर इनको बेचते हैं, फिर इनसे इनको पैसा आता है, तो इनकी ज़िंदगी जो है वो इससे आसान बनती है और इनकी बेरोज़गारी जो है वो इसकी वजह से दूर होती है। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग एंड ऑफ चैप्टर 5। तो इसके बाद हम ग्रामेटिक पोर्शन या इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस पे इंशाल्लाह कल जाएंगे। तो आज मैंने आपको बताया कि ये जो है कश्मीरी शॉल, इनकी इम्पोर्टेंस कैसी है, कहाँ से आए, किस चीज़ से हम ये शॉल जो है ये बना, कितनी किस्मों की जो है शॉल्स होते हैं, तो किस बादशाह ने इन शॉल्स को यहाँ पे लाया, तो किस किस कंट्री में इन शॉल्स की जो है वो ट्रेड होता है, कौन सा मुल्क इन शॉल्स को पसंद करता है। तो ये सब मैंने इस चैप्टर में बताया। तो उम्मीद है कि आप सबको अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ आया होगा। अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे आपकी बुक अगर देखेंगे आपको, ये मैंने वैसे लिखाए हैं पहले भी, तो यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, तो इनको आप देखिए। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखी है। पैराडाइज मीन्स हेवन, जिसको हम जन्नत कहते हैं, कश्मीरी से पैराडाइज ऑन अर्थ। एलिगेंस ग्रेसफुल, अट्रैक्शन, एलिगेंस हो गई जो ग्रेसफुल हो, जिसकी वजह से हम जिसकी तरफ मुतासिर हो जाए, अट्रैक्शन हो, वो है फ्लीस, द वूलन फर ऑफ ए शीप। शीप का फर जो होता है उसको, शीप का फर जो होता है उसको जो है वो बोलते हैं फ्लीस। लूम, ए स्पेशल फ्रेम ऑफ वीविंग, ये मैंने आपको कल दिखाया। लूम जो है इसको बोलते हैं लूम, जैसे कि यहाँ पे है जहाँ पे कारीगर काम करते हैं उसको लूम बोलते हैं। वह थ्रेड्स दैट गॉट लॉन्ग लेंथ एंड अ पीस ऑफ क्लॉथ, कल मैंने दिखाया जो लॉन्ग लेंथ के जो है वेफ्ट बोलते हैं, ये धागे जो यहाँ से हम चढ़ाते हैं वहाँ से उतारते हैं, तो ऐप हो गए जो यहाँ से चढ़ाते हैं, तो ये वो है। इसी तरह से वेफ्ट भी यही थ्रेड है। बोबिन मैंने कल बताया, ये एक जिसको कश्मीरी में फिरकी भी बोलते हैं, जो मशीन्स में हम यूज़ करते हैं, स्विंग मशीन्स में जी, यहाँ पे लिखा भी है आपको फिरक, इन कश्मीरी इसको यूज़ करते हैं। रियर,
नॉट कॉमन, रेयर हो गया वो जो सबके पास ना हो, किसी किसी के पास हो, वैल्यूएबल जो हो। क्रेज, फैशन, हाँ उस फैशन के दीवाने हो गए, क्रेज पागल हो गए, उसको बोलते हैं हम क्रेजी, हाँ तो वो इसी से वर्ड निकला। क्रेज मीन्स यहाँ पे फैशन। हाँ, टर्स्यूट, ब्राइड्स कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स एंड द थिंग, जो दुल्हन के कपड़े या बाकी चीज़ें होती हैं उनमें से एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है शॉल। तो इस तरह से ये कुछ मीनिंग है इन वर्ड्स की। तो हमने चैप्टर को कंप्लीट किया। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।